سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لوائل حمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق، المعلن الحق بالحق بالخاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد تبارک تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقال اللہ حق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد و ثنا و ستائش اس خداوند کریم کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی جان ہے۔ اس ذات واجب کے لیے، اس ذات یگانہ کے لیے ہر حمد و ثنا ہے کہ جس نے نظم و ضبط کے ساتھ اس دنیا کو بنایا ہے، اور جو براہ راست قرآن مجید سے ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تمام جن اور انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج کنٹینیو ہماری اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، سورہ حجرات کی 14ویں نمبر کی آیت، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت دار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ یقیناً عزیزان محترم، جس کے دل میں خوف الہی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا وہی تو گناہ سے بچے گا، اور جو گناہوں سے بچے گا وہی تو اللہ کا مقرب ہوگا، اور جو اللہ کے قریب جائے گا تو خداوند کریم اسے ہر طرح کی کامیابی دے گا، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو چاہے وہ اخروی کامیابی ہو۔ یقیناً اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو بھی چلتا ہے اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری کرے۔ عزیزم، میں انسانوں کی بات کہاں تک آپ کے سامنے کروں، آئیے ایک چھوٹی سی گفتگو ہم جناب یحییٰ پر کرتے ہیں کہ جناب یحییٰ جو کہ ایک ایسے نبی تھے کہ جن کے والد زکریا نے انہیں دعاؤں میں مانگا تھا، اللہ سے بہت خشوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے اس بیٹے کو مانگا تھا۔ جناب یحییٰ جب جوان ہوئے تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خوف الہی سے اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ نائیف ہو گئے تھے، آپ کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ کے بابا آپ سے پوچھتے تھے، میرے لال، میں نے تو تجھے دعاؤں میں مانگا ہے، آخر اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب یحییٰ کہتے تھے کہ بابا، آپ ہی نے تو واعظ میں فرمایا تھا کہ جنت اور جہنم کے بیچ ایک وادی ہے، اور وہ وادی وہی انسان، وہی شخص پار کر سکتا ہے کہ جو خوف الہی میں روتا ہو۔ اللہ اکبر! ایک معصوم نبی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو شبہ حرام سے بھی بچتا ہے، وہ معصوم نبی اتنا خوف الہی میں گریا کرتا ہے کہ وہ نحیف اور کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو خوف الہی میں گریا کرتا ہو؟ یقیناً عزیزان محترم، ہم روتے ضرور ہیں، مصلی پر آ کر جب روتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے، خدا نخواستہ ہمارے شوہر سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہمارے ساتھ، یا کسی بات پر کوئی لڑائی ہو جائے، یا کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے، اس وقت ہم جا کر مصلی پر روتے ہیں اور اللہ کے سامنے گریا کرتے ہیں۔ تو عزیزم، ایسے رونے سے کیا فائدہ؟
अल्लाह के खौफ में रोइए ताकि खुदा तुमसे राजी हो जाए। एक मासूम नबी का इतना रोना इस बात का सबूत है कि वो गुनाह नहीं करते थे, गुनाह से पाकीज़ा थे, लेकिन खौफ इलाही तक़वा का मादा उनके दिल में इतना ज़्यादा था कि वो इस कदर गिरिया करते थे कि अल्लाह खुद कहता था कि आए याहिया, इतना गिरिया करने से तुम नईफ और लागर हो चुके हो। तो जनाब याहिया कहते थे कि खुदा मैं तेरे खौफ से रोता हूँ। जनाब ज़करिया का यह आलम था कि वो अपने बेटे के सामने कभी भी जन्नत और जहन्नम के बारे में तस्करा नहीं करते थे, इसलिए कि जब भी जनाब याहिया जन्नत और जहन्नम के बारे में सुन लेते थे तो बहुत गिरिया करते थे। एक मर्तबा जनाब ज़करिया बनी इसराइल के बीच में एक तबलीग कर रहे थे, वाइस फरमा रहे थे कि जनाब याहिया अमामे से सर को छुपाए हुए उसी तबलीग में जाकर बैठ गए, उसी वाइस में बैठ गए। जनाब ज़करिया फरमाते हैं कि आए लोगों, खुदा से डरो, खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, क्योंकि जहन्नम में एक वादी है और वादी के अंदर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है सुकरान, और उसी सुकरान के आगे एक बयाबान है, उस बयाबान का नाम है गज़वान, और उसी बयाबान में एक कुआं है कि जिसकी मुसाफत 100 साल के बराबर है। अजीज़ान मोहतरम, मुसाफत 100 साल के बराबर होना क्या मतलब है इसका? यानी कोई चीज अगर उसमें डाली जाए तो 100 साल तक वो नीचे तह तक पहुंचने में उसे 100 साल लगेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर इरशाद फरमाते हैं जनाब ज़करिया, फिर इरशाद फरमाते हैं कि उस गज़बान में कुआं है जो आग का बना हुआ है, और उसी के अंदर आग के ताबूत रखे हुए हैं, और उस ताबूत में आग के पैरहन होंगे, आग का लिबास होगा, और जो भी खुदा की राह में खुदा की राह से भटकेगा, खुदावंद करीम उसी में उसे डाल देगा। बस लफ्ज़ सुकरान सुनना था। जनाब याहिया उठे और उठकर सहरा में चले गए, गिरिया करते जाते और सहरा में चले गए। अब जनाब ज़करिया जब अपने घर तशरीफ़ लाए तो जनाब याहिया की मादर गिरामी ने पूछा, मेरा लाल कहाँ है? तारीख के जुमले हैं कि जनाब ज़करिया और जनाब याहिया की मादर गिरामी चंद नौजवानों को लिए हुए जनाब याहिया को ढूंढने चले। जब जाकर देखा तो एक सहरा में एक गडरिया है, एक चरवाहा है जो भेड़ चला रहा है। तो एक मर्तबा पूछा कि गडरिया, क्या तुमने मेरे नौजवान बेटे को देखा है? हुलिया बताते हुए पूछा। एक मर्तबा उसने कहा, हाँ मुझे पता है, वो वादी में एक चश्मे में पैरों को डाले हुए बैठे होंगे और हाथ आसमान की जानिब होंगे, चेहरा अल्लाह की तरफ होगा और राज़ो नियाज की बातें कर रहे होंगे। गडरिया ने जिस सिमत बताया वो वहां पहुंचे तो क्या देखा, वही आलम है। एक पानी के चश्मे में दोनों पैर है याहिया के, हाथों को बुलंद करके राज़ो नियाज की बातें चल रही हैं, आंखों से अश्क रवा हैं। माँ ने जब अपने बेटे का यह आलम देखा तो सीने से लगा के कहा, मेरे लाल खुदा की कसम घर चलो। तो अजीज़ाने मोहतरम, देखा आपने एक नबी किस कदर तकवा रखता है, परहेजगारी रखता है, जिसे अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा, हमारे नमो अमल बनाकर भेजे, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा। अब अजीज़ाने मोहतरम, यह एक सवाल उठता है कि अल्लाह ने इतने नबियों को भेजा क्यों? ताकि इंसान हिदायत याफ्ता बन जाए, इंसान हादियों से हिदायत ले सके। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ज़माना गुजरता रहा, नबी आते रहे, लेकिन इंसान गुमराह था और आज भी गुमराही के दलदल में फंसा हुआ है। बहरहाल आइए एक और वाक़या मैं आपके नज़र करूं, बेहतरीन वाक़या जनाबे बहलूल दाना का। अजीज़म, ये जो नसीहत जो मैं बताने जा रही हूँ, ये 4 नसीहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है कि ये नसीहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी की है, और तज़किरतुल औलिया में भी ये नसीहत मौजूद है, और एक किसी नबी ने भी इसका तज़किरा किया है। एक मर्तबा अब्दुल्लाह मुबारक नाम के एक शख्स बहलूल को ढूंढते ढूंढते सहरा में गए। क्या देखा कि बहलूल नंगे पैर नंगे सर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब्दुल्लाह मुबारक उनके पास गए और जाके फरमाया, ऐ बहलूल आप पर सलाम। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया अब्दुल्लाह मुबारक ने कि ऐ बहलूल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए ताकि मैं अपने सरकश नफ्स से, गुनाहों से पाकीज़ा हो जाऊं।
आपने फरमाया कि मैं खुद आजिज और हैरान हूँ, मैं भला किसी को क्या नसीहत कर सकता हूँ, मैं तो दीवाना हूँ, किसी दानिशमंद के पास जाओ। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं आपसे ज़्यादा दानिशमंद मैं यहाँ कोई और किसी को नहीं पाता, मुझे आप नसीहत करें। आपने फरमाया, बहलोल फरमाते हैं कि ठीक है नसीहत भी कर दूंगा, लेकिन 4 शर्तें हैं मेरी, अगर आप इस शर्तों को मान ले, इन्हें एक्सेप्ट कर लें तो मैं आपको नसीहत ज़रूर करूंगा। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं यकीनन, आप बताएं कौन सी शर्त है। आपने फरमाया कि पहली शर्त यह है कि अगर तुम खुदा की नाफरमानी करना चाहो, अगर तुम कोई गुनाह करना चाहो तो अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दो। अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था कि अब्दुल्ला मुबारक हैरत ज़दा हुए। कहा शेख भला कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह का रिज़्क न खाऊं और मैं जिंदा रहूं। अल्लाह का रिज़्क खाना तो ज़रूरी है, बगैर खाने पीने की दुनिया में कौन जी सकता है। बस ये जुमला कहना था कि जनाब बहलूल कहते हैं कि आए अब्दुल्ला, अब तुम मुझे खुद बताओ कि तुम्हारी बंदगी का तकाजा क्या है। ये तुम्हारी बंदगी का सबूत है कि तुम जिसका रिज़्क खाते हो उसी की नाफरमानी करो। अब्दुल्ला कहते ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। कहा ठीक है, दूसरी शर्त बताइए। बहलूल कहते हैं दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करना चाहो, किसी गुनाह में मुश्तमिल होना चाहो तो खुदा के मुल्क से दूर चले जाओ, अल्लाह के ज़मीन से दूर चले जाओ। बस इतना सुनना था कि अब्दुल्ला मुबारक कहते तो पहली शर्त से भी ज़्यादा सख्त है। भला कैसे हो सकता है, हर जितनी ज़माने की ज़मीन है, दुनिया की ज़मीन है, ये सब अल्लाह का मुल्क है। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, यहाँ एक जुमला मैं कहना चाहूँगी कि मुल्क सिर्फ अल्लाह की ज़मीन ही नहीं, ये सितारे, ये चाँद, ये आसमान, ये तमाम आलम अल्लाह का मुल्क है। और भला कोई इंसान अल्लाह के मुल्क से कैसे दूर जा सकता है। इसी तरह अब्दुल्ला ने कहा कि भला कैसे मुमकिन है कि मैं अल्लाह के मुल्क से दूर चला जाऊं। बहलूल मुस्कुरा के कहते हैं ऐ बंदा खुदा, यही तो बताना चाहता हूँ कि जिसका रिज़्क खाते हो, जिसके मुल्क में रहते हो और फिर उसी से नाफरमानी, फिर उसी की वाजिबात पर अमल ना करो, जिससे उसने रोका फिर वही काम करते हो। अब्दुल्ला कहते ठीक है ऐ बहलूल, अब आप तीसरी शर्त बताएं। तीसरी शर्त क्या है। आपने फरमाया तीसरी शर्त यह है कि उस जगह जाकर गुनाह करो कि जहां तुम्हें अल्लाह देख नहीं रहा हो। बस इतना सुनना था। अब एक मर्तबा अब्दुल्ला मुबारक कहते कैसे मुमकिन हो सकता है, अल्लाह तो जर्रे जर्रे को देख रहा है, हर जगह मौजूद है, भला कैसे मुमकिन है कि वो कहीं नहीं हो और मैं गुनाह कर लूं, वो तो हर जगह मौजूद है। बस ये सुनना था। तो अब्दुल्ला जनाब बहलूल कहते हैं कि ऐ शेख, यही तो बताना चाहता हूँ कि जिसका रिज़्क खाते हो, जिसके मुल्क में रहते हो और जो ये जानते हो कि अल्लाह हर तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर तरफ से तुम्हें देख रहा है, फिर भी गुनाह से नहीं बचते, फिर भी हराम काम में मुलविस हो जाते हो, फिर भी गुनाह पे गुनाह कर रहे हो। अब्दुल्ला कहते ठीक है, ये शर्त भी मुझे मंजूर, ये शर्त भी मैं मानने को तैयार हूँ। चौथा शर्त बताइए। आपने फरमाया कि चौथा शर्त वो है कि जब मालकुल मौत आ जाए तो उनसे कहना ज़रा रुक जाइए, मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूँ, ज़्यादा सफ़र ले लूँ, फिर उसके बाद आपके साथ चलूँगा। एक मर्तबा जैसे ये कहा तो अब्दुल्ला परेशान हो गए। का भला कैसे मुमकिन है, मालकुल मौत कभी किसी को कब मौका देते हैं, एक दम का मौका नहीं देते, एक लम्हे का मौका नहीं देते, जैसे आते हैं जिस हाल में इंसान होता है उसी हाल में ले जाते हैं। बस बहलूल कहते हैं बंदे खुदा, यही तो बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता है कि मालकुल मौत मोहलत नहीं देते, कल आएगी या नहीं आएगी, तो जो काम कल पर डालते हो उसे आज करो और बेहतर से बेहतर करो, खुदा की इबादत करो, खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और अल्लाह से डरो। यकीनन अजीज़ान महतरम, बहलूल की इन नसीहतों ने हम सब को भी
अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और हमें मुतवज्जे होना भी चाहिए, क्योंकि बहलोल कोई और नहीं आले मोहम्मद के एक दीवाने का नाम है जिन्होंने बहुत बेहतरीन तबलीग की है ज़माने को। तो अजीज़म यही बात बताना चाहती हूँ कि यकीनन ये बात हकीकत है कि जब मलकुल मौत आएंगे तो किसी को तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। आपने कितनी मर्तबा सुना होगा कि फला शख्स ऐसे थे कि जो मुसल्ले पे थे, अचानक में दूसरे सजदे में गए और वो मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतर मौत। कोई मुसल्ले पर मर जाए तो कितनी अच्छी मौत है, कोई मिंबर रसूल पर मर जाए तो कितनी अच्छी मौत है, कोई कुरान की तिलावत करते मर जाए तो कितनी बेहतर मौत है। हम यही कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छी मौत मरता है तो हमारा दिल कहता है कि कितना अच्छा इंसान होगा, बाकिरदार होगा, तकवा वाला होगा और तकवा के साथ परहेजगारी रखता होगा, अल्लाह से खौफ रखता होगा। इसीलिए अल्लाह ने इसे मुसल्ले पे मौत दी है, इसीलिए अल्लाह ने इसे मिंबर पे मौत दी है। लेकिन अजीज़म, अगर इसी के ऑपोजिट हम देखें, अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा हो, गुनाह में मुश्तमिल हो और उसी वक्त मलकुल मौत आ जाए तो अल्लाह अकबर, एक पल को भी मौका नहीं मिलेगा कि तुम तौबा कर लो। इसीलिए जो आज है वो कल होगा नहीं। अब आप अपने हाथी में वॉच देख लिए या अपने घर में घड़ी देख लीजिए, घड़ी में 12 घंटे हैं। अब इस वक्त अगर 5 बज रहे हैं तो 1 घंटे के बाद 6 बजेंगे, दोबारा 4 नहीं बजेंगे। तो अजीज़ाने मोहतरम, जब टाइम इतनी तेजी से गुजर रहा है, इतनी तेजी से गुजर रहा है कि इंसान सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने कह दिया है कि मेरी इबादत के लिए पैदा किया हूं तो इबादत करे, ना कि दुनिया की बुराइयों में मुलव्विस हो जाए, ना कि दुनिया की गीबतों में मुलव्विस हो जाए। तो अजीज़म, इसी बात पर हमारी बात चल रही थी कि तक़वा इंसान को बुलंद करता है। अगर आपके दिल में तक़वा है ना तो आप कभी गुनाह में मुश्तमिल नहीं होंगी, कभी गुनाहों में मुलव्विस नहीं होंगी। हमेशा आपको ये लगेगा कि नहीं, अगर हलाल और हराम में आपको फर्क समझ में आ जाए और अगर हराम करने से पहले आपके दिल में 3 मर्तबा आवाजें आ जाए, आया मैं ठीक कर रही हूँ, कोई बात गलत तो नहीं हो रही है, कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तो समझ लो अब भी तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ कहीं है। और अगर गुनाह करके भी पशेमानी न हो तो समझ लो तुम अल्लाह से बागी हो चुके हो। क्योंकि अजीज़ाने मोहतरम, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वह इंसान, अगर किसी से सपोज गलती भी हो गई है, कोई गुनाह भी हो गया है, तो अल्लाह खुद फरमाता है कि ऐ बंदो, मैंने दरे तौबा खोल रखा है, आओ, चले आओ और मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन अजीज़म, हम तो दूसरों को देखने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहते हैं, कौन गुनाहगार है, कौन नमाजी है, किसने आया अच्छा काम किया या नहीं किया। एक बात याद रखिएगा कि हमारे कब्र में कोई सोने वाला नहीं, ना हम किसी के कब्र में जाके सोने वाले हैं, अपने ही अमाल हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए अल्लाह से तौबा करो, खुदा से सदक़े दिल से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो माफ़ करने वाला रहमान और रहीम है। और जिसकी बारगाह में तुमने माफ़ी मांगी है, उम्मीद और यकीन के साथ माफ़ी मांगो कि वो हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है। उसने ये कह दिया है कि मैंने दरे तौबा गुनाहगारों के लिए खोल रखा है, सरकशों के लिए नहीं। तो अजीज़ाने मोहतरम, जो अपने सरकश नफ्सों के बातों में आकर गुनाहों में इतने ज़्यादा मुश्तमिल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मुलव्विस हो जाते हैं कि उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि आया हमें मरना भी है, हम मरकर जाएंगे भी, खुदा हमें मौत भी देगा। तो याद रखिएगा कि खुदा ने ये ज़िंदगी दी है इसीलिए कि हम इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ बेहतर तरीके से कर लें, ताकि कल ऐसा न हो कि हम उन लोगों में शुमार कर जाएं। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप फरमाते हैं कि महशर के हंगाम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे, आए काश हमने अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर लिया होता, आए काश मैं नमाज पढ़ लेता, आए काश मैं दुनिया की बातों में न लगा रहता, आए काश मैं इस क़यामत के दिन को याद कर लेता। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो काश लफ्ज़ है ना,
ہمیں اس وقت نہیں، اس وقت کہنا ہے کہ کاش میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، کاش میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اگر یہ کاش آج ہم استعمال کر لیں تو کل محشر کے ہنگام میں ہماری آنکھیں روئیں گی نہیں، بلکہ ہم سرخ روح ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے اور آواز دیں گے پروردگار عالم میں تیرا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا۔ انسان اپنی حقیقت کو ہی جان سکتا ہے، کیونکہ اب عزیزان محترم بس ایک جملہ کہہ کر میں فضائل کے دور کو ختم کروں کہ خداوند کریم نے اگر کسی کو تقوی اور پرہیزگاری دی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو بھی تقوی کی طرف دعوت دے، پرہیزگاری کی طرف دعوت دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں نے دامن وقت رحمت خدا یہیں ختم کر دیا۔ اب 2 جملے مصائب جو کہ مال مجلس ہے۔ اللہ کسی کو ایسے غریب نہ کرے کہ جیسے زینب غریب ہوئی ہے۔ عزادارو، تاریخ کے جملے ہیں کہ امام سید سجاد 35 برس بس یہی کہتے روتے تھے، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ آخر شام میں کیا گزری ہے کہ میرا مولا خون کے آنسو رو کر کہتا تھا شام کو سجاد کبھی بھول نہیں سکتا۔ آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے مولا سجاد سے پوچھ لیا تھا، مولا آپ شام کو ہی یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا وقت وہ آیا کہ جب ہمیں شام کے بازار کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، شام کے دربار کو سجایا جا رہا تھا، میری ماں بہنیں کھلے سر تھی، میری پھوپھی زینب کھلے سر تھی، سجاد ناتواں تھا، ہاتھوں میں زنجیر تھی، میرے گلے میں تاگ تھا۔ بس ایک مرتبہ جب ہمیں لے جا کر کھڑا کیا گیا تو ناگہا ایک یہودی سردار آ کے کہتا ہے پسرے سال اگر ابھی دربار میں لے جانے کے لیے ان قیدیوں کو دیر ہے تو ہمارے محلے میں لے کر چلو، میں تمہیں بہت خزانہ دوں گا۔ پسرے سال ارے دولت کی لالچ میں آ گیا اور ہمیں یہودی کے محلے میں لے جایا گیا۔ آگے آگے شہیدوں کے سر تھے، پیچھے پیچھے ماں بہنیں کھلے سر تھی اور میں سجاد دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں شخص یہودی کے محلے میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ یہودی سردار نے اعلان کیا، اے لوگوں اپنے اپنے گھر سے نکلو، علی کی بیٹی، علی کا بیٹا آ رہا ہے، وہی علی کے جس نے تمہارے باپ کو جنگ احد میں، جنگ خیبر میں قتل کیا تھا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی ملعونہ چھت پہ چڑھ گئی اور پوچھا ان سروں میں سے حسین کا سر کون سا ہے؟ خولی آگے بڑھا، کہا یہ ہے حسین کا سر۔ ملعونہ دور تھی، ایک سونے کا ہار نکالا، خولی کے قدموں میں پھینک کے کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ قریب آیا خولی، ارے ملعونہ کا ہاتھ اٹھا، جب ہاتھ نیچے آیا اللہ اکبر، میرے مولا کا سر زخمی ہو گیا۔ سجاد کہتے ہیں میری 4 سال کی بہن تڑپنے لگی، آواز دینے لگی، اے میرے پیارے بابا آج تیرے سر کو بھی زخمی کیا گیا۔ ایک ملعونہ کہتی ہے کہ تو نے حسین کو زخمی کیا ہے، میں زینب کے سر پہ پتھر ماروں گی۔ عزادارو، ذرا تصور کرنا کسی کے ہاتھ پسے پشت بندے ہو اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر آ کر لگ جائے، میرا دل کہتا ہے زینب کبریٰ تڑپ گئی ہوگی، خون سے سر بھر چکا ہوگا، آواز دی ہوگی اے بھیا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج